So hello students, today we are starting with chapter 3 of our book Hornbill of class 11th, and the name of a chapter is Discovering the Tut. The saga continues and the writer of this chapter is A.R. Williams. So now this chapter is about an Egyptian king. All of you know about mummies. We all know about mummies. तो mummies क्या होती है? जो Egyptians है, they never wanted to believe that their loved ones they die, है ना. They always wanted to keep them with themselves, so they used to apply some paste on them, and they used to preserve the dead bodies. We can find mummy. Where do we find mummy in India? हाँ, Albert Hall, Jaipur, we find mummy. And you know one secret thing about a mummy? एक मम्मी के बारे में एक सीक्रेट चीज़ होती है. पता क्या होता है कि जो मम्मीज़ हैं दे ग्रो फॉर 6 months एंड देन देयर बॉडी द साइज डिक्रीजेज फॉर 6 months. They grow, and one mummy is also there in south in some church. One mummy is lying, so it's a secret of that mummy that it grows for 6 months. It keeps on, मतलब है ना, not it enlarges या बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है. स्लाइट चेंजेस आर सीन इन द बॉडी कि वो थोड़ी बढ़ रही है या थोड़ी कम हो रही है. तो किस तरह से एक क्विक समराइज़ कर रही हूँ कि एक जो राजा है, जो लास्ट इजिप्शियन किंग था, जो बहुत छोटी एज के अंदर उसकी डेथ हो गई थी. उसकी जो डेथ के रीज़न्स थे वो किसी को नहीं पता थे, तो लोगों को ऐसा लगा शायद उसको मार दिया गया होगा. तो किस तरह से उसके मरने के बहुत सालों के बाद में उसकी मौत का पता लगाया जाने के लिए उसकी मम्मी को निकाला गया. तो कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों ने उसको एक कर्स माना. जो भी हुआ वो है ना, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है चैप्टर के अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, टफ है, एकदम टिपिकल वर्ड्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं. सो वी स्टार्ट विद द चैप्टर स्टार्ट्स विद, they say he was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and his empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. With murder being the most extreme possibility, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers no new clues about his life and death and provides precise data of an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब फ़ेरो क्या होता है? फ़ेरो, राजा को फ़ेरो कहा जाता है. इजिप्शियन के अंदर जो राजा है वो फ़ेरो कहा जाता है. और बहुत 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 साल पहले वो जो उसकी डेथ हो चुकी है, और ये तो जो उसकी डिस्कवरी उसकी जो की जाने लगी है वो तो 1922 के अंदर उसकी टूम को खोदा गया, निकाला गया है, और उसको बहुत सारे सिटी स्कैन्स के अंदर गया गया ताकि पता चले कि उसकी कैसी लाइफ थी, क्या था, है ना. Now, an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into the city scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 3,300 साल पहले कोई किसी की डेथ हुई है. इमेजिन, मतलब अगर हम 300 दिन बाद भी अगर किसी की बॉडी निकालते हैं तो हमें उस बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना. और 3,300 साल बाद एक बॉडी निकाली जा रही है, उसको सिटी स्कैन मशीन के अंदर भी डाला जा रहा है. और जिस दिन उसकी बॉडी निकाली गई है उस दिन क्या है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ईश्वर है, भगवान है, या जो हेवन्स है, दे आर नॉट हैप्पी. कि कुछ होता ना बुरा होने की संभावना, इस तरह से काले बादल मंडराने, बहुत तेज़ हवाएं चलनी, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही इनऑस्पिशियस चीज़ों टाइम होता है. All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped. और एक्चुअली में यहाँ पे उस ग्रेवयार्ड के बारे में जिक्र किया गया है. सिमेट्री क्या होती है? जहाँ पे बरी किया जाता है ना. तो वो क्या है, ऑफकोर्स वहाँ पे जो राजा है तो उनके लिए एक अलग ग्रेवयार्ड्स होंगे. तो उस जो वो ग्रेवयार्ड वाला एरिया उसको वैली ऑफ किंग्स ही कहा जाता है. उसमें से उस टट की जो बॉडी को है निकाला गया है उस ग्रेवयार्ड से. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड
descended into the cramped rock-cut tomb some 20 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered the Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from the guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death and his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. ठीक है, तो उस पूरी जो दोपहर है बहुत यूजुअल थिंग्स होते रहे, बहुत पूरे जो वर्ल्ड से अलग अलग जगह से जो टूरिस्ट है वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जब उसकी बॉडी को निकाला जा रहा था. एवरीवन कुछ साइलेंटली उसको देख रहे थे, कुछ जो उनके पास गाइड बुक्स थी उनके अंदर कुछ उसकी अनटाइमली डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. और एक ये भी ऐसी प्रोफेसी किसी टाइम ऐसे कहा गया था कि अगर किसी ने भी उसकी बॉडी को हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा. तो कुछ लोग जो है उस प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसको जो है इस फेरो को जो है इसकी नींद से जगाया जा रहा है ना. तो अब ये क्या कर्स लेके आएगा, अब क्या बुरा होगा. द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट चार्टर डिड इन 1920, सेड जाही हॉवर्स, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक. अब सबसे पहले उस बॉडी को कब कौन देख रहा है, ये 5 जनवरी, ये मतलब 2005 की बात है. और वो बोल रहा है कि किसने उस मम्मी को ख़राब करा है. पहले जब इन्होंने है ना कार्टर करके एक आदमी ने उसने उस मम्मी को ख़राब कर दिया और जब उसको वो फर्स्ट लुक दे रहा है. और ये कौन है, ये जनरली सेक्रेटरी है इजिप्ट का एंटिक्विटीज़ डिपार्टमेंट का. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. It contents, though hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become a part of Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he'd want in his afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. तो जो कार्टर है इसने ऑफकोर्स बहुत सालों तक रिसर्च चली होगी कि कौन सी ग्रेव के अंदर वो फेरो, ये भी पता होना चाहिए ना. तो बहुत फ्यूटाइल है ना, यूजलेस रिसर्चेस, नहीं पता चला. तो कार्टर वॉज द वन हु इन 1922 अल्टीमेटली फाउंड इन विच ऑफ द ग्रेवयार्ड, विच ग्रेवयार्ड इज़ ऑफ दैट फेरो, ऑफ दैट लास्ट फेरो किंग, है ना. और उसके अंदर जब उसको खोदा गया, जब वहाँ पे उसको निकाला गया तो क्या पता चला कि वो सबसे बड़ा, ऐसे समझ लो, खजाना मिला था पुरातत्व विभाग को. बिकॉज उसकी जो बॉडी है इट वॉज लेडन विथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड एवरीथिंग, है ना. प्लस उसकी जो डेली नीड्स की चीज़ें थी वो भी थी, है ना. गोल्ड रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स, और मतलब कि दे ऑल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टरवर्ड्स, मतलब वो डेथ के बाद में भी उसके जो काम आएंगे. तो ही शुड हैव सम रिचेस ऑफ हिज ओन. ठीक है, यहाँ तक कि खाना एंड वाइन भी उसके ग्रेवयार्ड के अंदर मिले थे. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. ठीक है, सबसे पहले तो इतने सारे ट्रेजर्स थे, पहले तो उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी गई. उसके बाद में उसके जो कॉफिन थे, एक्चुअली में वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. जब पहला कॉफिन खोला तो उसके अंदर क्या है, पत्ते थे ऑलिव के और विलो के. वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन मार्च और अप्रैल. तो उन फूलों से, उन पत्तों से पता चला कि जो फेरो, उसकी डेथ जो है मार्च और अप्रैल के बीच में हुई होगी, है ना. उन पत्तों की वजह से पता चल रहा था, है ना, शायद वो उस सीज़न के अंदर ब्लूम करते हैं. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual's resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimated force could move them. Carter wrote later what was to be done. अब एक्चुअली में क्या है, जो कार्टर जो उसका जो बॉडी थी उसको उस कॉफिन के अंदर डालने के बाद में उसके ऊपर रेजन्स क्या होते हैं, किशमिश होती है ना शायद, तो किशमिश से उस पूरे को जो भर दिया गया था. तो अब क्या हुआ, उसके अंदर से वो फ्लूइड निकल के वो इतना हार्ड हो गया था कि गोल्ड भी उससे कम हार्ड होता होगा. और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस कॉफिन से उस बॉडी को कैसे हटाया जाए, कैसे उसको हटाया जाए. उस कॉफिन से उस बॉडी को कैसे हटाया जाए. ठीक है, देन द
The sun can beat down like hammer this far south in Egypt. The carter tried to use it to loosen the raisins for several hours. अब क्या वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि जो हैमर है, हथौड़ा भी पिघल जाए, है ना, इतनी धूप पड़ती है। तो कार्टर ने सोचा कि इस बॉडी को थोड़े दिन अगर धूप में रखते हैं तो वो जो रीजन्स है वो पिघल जाएंगे, है ना, और जो बॉडी है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया। देखो इतनी गर्मी है इजिप्ट के अंदर, 149 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस भी नहीं झेल पाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर जो है 149 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, सॉरी। नथिंग बज्ड। He reported with scientific detachment that he consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the kings. Chisel मतलब उसको छीनी और हथौड़े से उसको मार मार के उस बॉडी को जो है अलग करना पड़ा। मतलब जो 149 डिग्री टेम्परेचर भी उसको जो है वहाँ से नहीं निकाल पाया था। In his defense, Carter really had a little choice. If he had cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets and ceremonial aprons, sandals, seats for his fingers and toes, and new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on layer of sand in a wooden box with a padding that concealed the damage, the bed where the Tut now rests. तो अब क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर उस टट की बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो उनके जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको मार के चोर कब का उस सबको ले जाता, क्योंकि उतना गोल्ड मतलब उसको पहनाया गया था, नेकलेसेस, है ना, सोने का गाउन, सोने के एप्रन, रिंग्स, मतलब ऐसा कुछ भी था नहीं था जो छोड़ा गया हो, क्योंकि उस टाइम जो राजा थे बहुत वेल्दी हुआ करते थे, एंड एवरीथिंग ऑफ प्योर गोल्ड, है ना। और उस गोल्ड को निकालने के लिए, है ना, उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए टट को, उनको जितने भी जॉइंट्स थे उन सबको काटना पड़ा, डायसेक्ट करके, और फिर उस बॉडी को उन्होंने वापस वो साथ में लेके आए, और जितना भी वो पार्ट था वो सारे को एक कॉफिन में डाल के वापस उन्होंने बरी किया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of the death. तो एक्चुअली में जब कार्टर ने इसके ऊपर जब डिस्कवरी की थी उस टाइम क्या जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इतनी जो वेल्थ, सोना, वो सब मिला था उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान था। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजी जो है धीरे धीरे चेंज हो गई है। अब लोगों का जो ध्यान है वो किसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है, मिस्ट्री के ऊपर, कि कैसे इसकी डेथ हुई, इतनी यंग एज के अंदर इतना बड़ा राजा जो कैसे मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। It also uses more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. ठीक है, अब उसके बाद में जब उसकी मम्मी निकाली गई उसके 40 साल बाद में उसका एक्सरे हुआ, जिसमें पता चला कि उसकी ब्रेस्ट बोन और उसकी जो चेस्ट बोन है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT scan जिसको हम बोलते हैं, by which hundreds of X-rays in cross section are put together with slices of bread to create 3-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? तो जब CT scan अब हम कर सकते हैं तो मेन हमारे दो क्वेश्चंस है कि जब वो मरा तब उसकी क्या एज थी और वो कैसे मरा। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of his dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. ठीक है, अब जो टट का डिमाइस है वो ऑब्वियसली बहुत ही है ना एक सस्पिशन के अंदर है, क्योंकि वो लास्ट रूलर था अपनी फैमिली का। ऐसा क्या हुआ उनकी फैमिली के बाद में कि उसके बाद में जो वो पूरी उनकी जो है ना एक रिजाइन, उनकी डायनेस्टी ही पूरी ख़त्म हो गई। तो क्या रीजंस थे वो आज तक भी अनक्लियर है, किसी को भी नहीं पता चला। अमेनहोटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, है ना, अमेनहोटेप III है जो कि टट का फादर है या ग्रैंडफादर, ये अभी तक अनक्लियर है,
was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades in the height of 18 dynasty golden age. ठीक है, तो ये जो एमेनहोटेप है इसने 40 साल, 4 डेकेड्स हो गए, 40 साल तक उसने बहुत अच्छे से रूल किया और उसके पास बहुत वेल्थ थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of एंशंट इजिप्ट. इसके बाद में इसका बेटा आया, और जब इसका बेटा आया तो एक एंशंट इजिप्ट की हिस्ट्री के अंदर सबसे एक अजीब सा वो पीरियड था, स्ट्रेंज पीरियड था. द न्यू pharaoh promoted worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or the servant of Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known as Amarna. He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center in Luxor. The site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries, was coming to an end, and the Akhenaten was a little wacky. ठीक है, तो ये जो Akhenaten IV था ये थोड़ा सा सनकी टाइप का होता है ना, वो बोलता है. इसने क्या करा, इसने ऑफकोर्स एक होता है ना, किसी भी डायनेस्टी का एक पर्टिकुलर गॉड होता है जिसको वो फॉलो करता है. इसने अपना गॉड ही बदल दिया. इसने गॉड किसको बनाया, सूरज को, सूर्य देवता को बनाया. अपनी जो रिलीजियस कैपिटल है उसको बदल दी, और जो इतने सालों से इनकी जो है ना पूर्वज जिस भगवान को, जिस देवता को मानते आ रहे थे, उसकी मूर्तियां तक इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी. तो सोचो वो जो टाइम है वो कितना हॉरिफाइंग टाइम होगा, कितना टेरिफाइड है ना. व्हेन यू आर आस्क्ड टू चेंज एवरीथिंग इज़ द मोस्ट टेरिबल टाइम, है ना. तो वो बोल रहे हैं वो जो आदमी था वो थोड़ा सा सनकी था. टट का जो फादर था, हाँ टट का जो फादर था, हाँ उसने सन को गॉड बनाया, है ना. और उसने अपना नाम भी, मतलब, और उसने गॉड को ऐसे, उसने ही हिमसेल्फ वांटेड टू प्रमोट हिमसेल्फ एज द इमेज ऑफ गॉड, है ना. लाइक ही इज़ द इमेज ऑफ गॉड. So he wanted to be worshipped himself, कुछ ऐसा था. Now they say that after Akhenaten's death, a mysterious ruler named Semenkhare appeared briefly and existed with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. ठीक है, अब Akhenaten की डेथ के बाद में एक थोड़े से समय के लिए सेमेन खखरे आया था, जो बहुत ही कम टाइम के लिए रूल किया. उसने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. और उसके बाद में अचानक एक बहुत ही छोटी एज का जो राजा है वो बन गया था, और वो हमारा टट है. एक्चुअली में उसका नाम क्या है, तुतनखातेन. किंग टट एंड हिज वाइडली एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखामुन. उसका नाम तो क्या था, तुतनखातेन. खातेन क्योंकि ही इज़ द इमेज ऑफ गॉड, सन गॉड, है ना. और उसने जो अपना नाम है चेंज कर दिया था तुतनखामुन के एज द इमेज ऑफ एमुन. मतलब ये अपने वापस प्रीवियस अपने गॉड्स को उसने मानना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी इमेजेस को और जिसकी फ़ोटोज़ को उसके फादर ने जो है डिस्ट्रॉय करवाया था. and oversaw a restoration of old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. अब ये जो यंग राजा है इसने कम से कम मात्र 9 साल तक इसने है ना राजपाट को संभाला, और अचानक जो है इसकी डेथ हो जाती है. Regardless of his fame and the speculations of his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many, no one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturers. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली उसने, चाहे उसने सिर्फ 9 साल ही रूल करा, लेकिन उसने अपना बहुत नाम कमाया. उसने एक अपना वर्चस्व जो है वो बना लिया था. और उसकी डेथ के बाद में फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन एक मम्मी है ना. इजिप्ट के अंदर हम सबको पता है बहुत सारी मम्मीज़ हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता है कि कितनी जो मम्मियाँ एक्चुअली में हैं. अब तक जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो भी है ना ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो इस पर रिसर्च कर रहा है. अब तक 600 मम्मीज़ वो फाउंड आउट कर चुका है. एंड द टट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू अंडरगो अ सिटी स्कैन, एंड इट वॉज द फर्स्ट डेड बॉडी एक्चुअली टू अंडरगो अ सिटी स्कैन. हमेशा सिटी स्कैन्स क्या होते हैं, हमारे मतलब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग का एक सिटी स्कैन होता है. एक डेड बॉडी का जो सिटी स्कैन है वो, और ये जो सिटी स्कैन मशीन है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दान के अंदर जैसे दी जाती है, तो एक जोग्राफिकल डिपार्टमेंट ने दान के अंदर उसको दी थी.
A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन 1700 इमेजेस उसके पूरी बॉडी की जो है वो निकाली गई हैं. टट्स हैड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन एयर डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज विद टट्स एंटायर बॉडी. सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that winged goddess and glided burial shrine protected for so long. तो इतने सालों तक जिसको प्रोटेक्ट करके रखा था उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो गया और डिटेल के अंदर उस पर जो पूरा वर्क है वो स्टार्ट हो गया. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट आउट ऑफ द टूम इन हिज बॉक्स. जिस रात को उसका सिटी स्कैन होना था उसके रात को उसको उसके बॉक्स में से निकाला गया. The pallbearers, they climbed the ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift it into the trailer and held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1,000,000 scanner had quit because the sand in cooler fan, a curse of the pharaoh, joked the guard nervously. ठीक है, अब क्या हुआ, फ़ेरो को बहुत मुश्किल से है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको ऊपर लाया गया, उसको जैसे तैसे उस मशीन के अंदर डाला गया. 20 मिनट के अंदर अंदर ही जो वो मशीन है वो ख़राब हो गई. ऐसे कहा जा रहा है उसके अंदर कुछ जो फ़ैन चलते हैं जो इजिप्शियन डस्ट की वजह से या मिट्टी की वजह से वो अटक गया और 2 नए फ़ैन्स लेके आया. और जो वहाँ का जो गार्ड था वो कह रहा है कि ये मिट्टी की वजह से कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ये ख़राब किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द फ़ेरो, है ना, जो राजा है वो श्राप दे रहा. Eventually the substitute fans worked well to finish the procedure. like जब जो substitute fans लाए थे उन्होंने अच्छा काम किया और जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ. After checking that no data has been lost, the technicians turned that over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from the coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. तो 3 घंटे तक उसका जो सिटी स्कैन वगैरह चला, सारी रिपोर्ट्स आ गई और उसके बाद में वापस उसको उस कॉफिन के अंदर जहाँ पे उनको पूरे रिचुअल्स के साथ बहुत साल पहले लिटाया गया था वो वापस वहाँ पे उनको लिटा दिया गया. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of the tut on the computer screen. A grey head took shape from the scattering of pixels and technician spun and tilted in every direction. Neck vertebrate appeared as clearly as an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of rib cage, other transection of a skull. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but what I think I will go and sleep. ठीक है, तो उन्होंने जैसा सोचा था कि है ना कुछ बुरा हो जाएगा या मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जो पूरी बॉडी थी उसके अंदर सब कुछ था, है ना. पहले ऐसा रिवील किया था कि उसमें रिब केज ही नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बॉडी एक नॉर्मल बॉडी की तरह थी जो कि मतलब उसके अंदर सब कुछ फाइंड आउट किया जा सकता था अभी भी इतने सालों के बाद में भी. और जो जिसने वो करा था ज़ाही हवास, वो अब बहुत रिलैक्स फील कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं कल पूरी रात जो है वो सो नहीं सका और मुझे लग रहा है कि आज जो मैं है वो आराम से सोऊंगा. आई विल गो एंड स्लीप. By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in the valley of the departed. Just above the entrance of the Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the souls of the Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. ठीक है, और जैसे ही टट की बॉडी को वापस उसकी कॉफिन के अंदर पहुंचाया गया और वापस सब हो गया, वैसे ही जो एकदम तेज़ हवाएं आंधियां चल रही थी वो सब एकदम बंद हो गई, है ना. जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया और उसकी जो टूम थी उसके ऊपर जैसे सारे स्टार्स की जो कॉन्स्टलेशन है वो उसको गार्ड करने के लिए वहाँ के ऊपर आ गई है. ऐसे ना जैसे जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है ना, जो आफ्टर लाइफ जो हमारे गॉड हैं वो उस बॉय किंग को वॉच कर रहे हैं हमेशा, मतलब एवरी टाइम ही इज़ सिक्योरिंग एंड ही इज़ देयर फॉर हिज सेफ्टी, ऐसा कुछ है. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके बाद में फर्दर है कि जिन जिन लोगों ने जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टट की बॉडी को मतलब किया था, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे उन सब की अनटाइमली डेथ हुई थी. अनटाइमली और अंडर मिस्टीरियस कंडीशन उन सब की जो है डेथ हो गई थी. ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द टट्स बॉडी आउट, सिटी स्कैनिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, है ना, दे ऑल डाइड अनटाइमली. सो
you may call it anything, है ना, curse of God, whatsoever. So I hope the chapter is clear. We'll be discussing the question and answers in our next class.